حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ المومن یرا لہ، یعنی مومن کبھی خود رویا دیکھتا ہے اور کبھی اس کے بارے میں کسی اور کو دکھایا جاتا ہے۔ دوسری خواب ہے میری، مورخہ 25 فروری 2012۔ رات کو سونے سے پہلے ساجد نے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا اور حضرت اقدس مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی دعائیں پڑھ کر خاکسار سو گیا۔ خواب میں نے دیکھا کہ جناب حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جاہ و جلال کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کی پیشانی مبارک بہت چمک رہی ہے۔ نوجوانی کی عمر میں یعنی نوجوان ہیں اور چھوٹی چھوٹی داڑھی مبارک ہے اور کالی ہے، مجھے ملتے ہیں۔ میں السلام علیکم کہتا ہوں، اچانک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کی تصویر بن جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹوپی جناح کیپ پہنی ہوئی تھی جو حضرت عبدالغفار جنبہ صاحب پہنتے ہیں۔ میں حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام سے کافی باتیں کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا جسم تبدیل ہو کر عبدالغفار جنبہ علیہ السلام بن جاتا ہے۔ چاروں طرف روشنی ہی روشنی ہوتی ہے۔ مجھے اسی حالت میں بیداری ہوئی۔ صبح میں نے یہ خواب نوٹ کر لی۔ 25 دسمبر 2012 کو ایک میں نے خواب دیکھی۔ میں پہلے اپنی خوابیں بیان کرتا ہوں۔ رات 2 بجے خواب میں چک نمبر 70 ML ضلع بکھر اپنے آپ کو وہاں دیکھتا ہوں۔ وہاں ہمارے امام الصلاۃ ہیں، ایک محمد یاسین صاحب سیکٹری مولوی ہیں وہاں جماعت کے، اور ان کے بھائی محمد افضل کو بھی دیکھتا ہوں۔ افضل صاحب مجھے اشارہ سے کہتے ہیں کہ یاسین صاحب کو دعوت اللہ کرو۔ میں نے بات شروع کی، یاسین نے فرمایا کہ میں نے بیعت کر لی ہے۔ میں نے کہا گلے ملو۔ ایک دوسرے کو گلے مل کر کثرت سے ہم رونے لگ گئے۔ میں نے یاسین صاحب کو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جلال کے ساتھ کھڑے ہیں سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے حضرت امام مہدی علیہ السلام کھڑے ہیں، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے حضرت عبدالغفار جنبہ صاحب کھڑے ہیں۔ میں شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے کہتا ہوں کہ آخر پر کھڑے حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں، اور ہم دونوں بہت رو رہے تھے۔ اتنا روئے ہم خواب میں، مجھے جب جاگ آئی یعنی میں اٹھا ہوں تو بچہ جیسے آہیں بھرتا ہے، میں کافی دیر آہیں بھرتا رہا۔ یہ پھر ابھی ہماری یہ دعائیں جاری تھیں کہ میں نے سلطانی مولوی کو کہا تھا کہ میں تیرے ساتھ اس نبوت کے موضوع پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو رمضان شریف آ گیا، 18 جولائی 8واں روزہ تھا رمضان کا۔ تو میں نے روزہ رکھ کر میں نے وضو کیا اور اپنی چارپائی پر بیٹھ گیا کہ تھوڑی دیر کے بعد نماز فجر پڑھوں گا۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے مجھے غنودگی سی ہوئی۔ میں نے ایک کشف دیکھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جگہ کھڑے ہیں جہاں میں اپنے کمرے میں نماز پڑھتا ہوں۔ میں آگے بڑھ کے حضور سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عامر مسئلہ نبوت ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اور حضرت عبدالغفار جنبہ دونوں امتی نبی ہیں اور میرے روحانی بیٹے ہیں۔ میں خواب میں حضور کے لیے کرسی کا انتظام کرتا ہوں کہ حضور کھڑے تھے، میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ کرسی رکھوں تاکہ حضور تشریف رکھیں۔ اتنے میں میری کوشش میں حضور نے السلام علیکم کہہ کر چل دیے۔ میری آنکھ کھل گئی۔ میں اتنا خوش ہوا کہ رمضان شریف کے مہینے میں مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے ये मेरा मसला ये भी हल कर दिया। उसी रोज़ ही 18/7/2013 8वां जो रोज़ा था, उसी में वदूद साहब को भी एक कशफ देखा उन्होंने। तो मैंने अपना उनको जब फ़ोन करने, मैंने कहा वदूद को ये मैं फ़ोन पर बताता हूँ कि मैंने एक कशफ देखा है। तो जब मैंने फ़ोन किया तो वदूद साहब कहने लगे कि मुझे भी एक कशफ आज ही हुआ है, एक ही रात में, और एक ही थोड़ा टाइम है रात का। वो कहते हैं कि मेरी पहले सुन लें। मैंने कहा चलें आप सुनाएं, फिर मैं आपको बाद में अपना कशफ सुनाता हूँ। वो लिखते हैं, उन्होंने लिख के ये मुझे भिजवाया है। जब हम रोज़े की जाली के पास पहुँच गए तो हमें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात की आवाज़ आई और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ खड़े थे। मैंने व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात का जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वदूद अहमद, मैंने आपको बुलाया है कि आखिरी नबी इस तरह से नहीं हूँ जिस तरह से ये लोग समझते हैं। मैं दुनिया में आखिरी शरीयत लेकर आया हूँ, मगर इस शरीयत को लोगों तक पहुँचाने के लिए तो नबी चाहिए जिसको अलहाम से अल्लाह ताला इसके मानी समझाए। वो नबी मेरी असल तालीमात को मेरी उम्मत तक पहुँचा दे। इनमें से हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और हज़रत अब्दुल गफ़ार जंबा मेरे ख़ास नबी हैं। फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बेटे दाऊद हमदान अहमद को मेरे से अपने हाथों में ले लिया और उसके चेहरे और माथे से चूमने लगे। दाऊद हमदान ना उपराया, आपसे ऐसे ही खेल रहा था जैसे मुझसे खेलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, ये मेरा हुसैन है, इसको संभाल कर रखना। वदूद अहमद, मुझे पता है कि तुम इससे मेरे से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और हज़रत अब्दुल गफ़ार जंबा की फ़ोटो वहाँ दीवार पर होती है, रोज़ा के अंदर। वो कहते हैं कि तस्वीरें 2 लगी हुई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन फ़ोटो की तरफ उंगली का इशारा करके फरमा रहे थे कि इतने ही मुझे ये प्यारे हैं। तो कूलू कौलन सदीदा के तहत मैं अपनी पहली ख्वाब बयान करता हूँ। ये पहली ख्वाब 13 फरवरी 2015 की है। बरोज़ जुमातुल मुबारक रात ख्वाब में मैं अपने आप को एक बहुत बड़ी मस्जिद में देखता हूँ। मुझे मस्जिद में आवाज़ आती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर मौजूद हैं। तो मैं मस्जिद के अंदर ही जब दाखिल होता हूँ तो देखा कि महराब जो मस्जिद का है वहाँ जाए नमाज होता है, तो उसके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक बहुत चमक रहा है और काफ़ी रोशनी भी है मस्जिद में। आपकी दाढ़ी मुबारक में चंद सफ़ेद बाल भी नज़र आ रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल जो हैं वो उस काली दाढ़ी में बहुत ही यानी कि वाज़े रोशनी की वजह से वो खूबसूरत लग रहे हैं। और मुझसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत शफ़क़त और हलीम अंदाज में फरमाया कि आमिर आप ठीक हैं, कुरान मजीद पढ़ें। मैं पहली साफ़ में बैठा हूँ हजूर के सामने, जो पहली साफ़ है। सजदा करने की जगह पर साफ़ के ऊपर कुरान मजीद लिखा हुआ होता है। वो जैसे ये साफ़ है, सामने साफ़ होती, सजदा की जगह पर वो साफ़ जो है खजूर के तनों की बनी हुई, वो जिस तरह पुरानी होती है, आजकल तो ये आई हैं ये आजकल जदीद, लेकिन पुरानी जो सफ़े हैं वो वैसी ही मैंने देखी। वो उसकी पट्टी जो एक जहाँ सजदा करते हैं उस जगह पर पट्टी में 7 लाइनों में कुरान मजीद की आयात लिखी होती हैं, सूरत फातिहा भी और उसके बाद सूरत अल बकरा है। तो ये पट्टी की सूरत में वो चल रही हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शहादत की उंगली से मेरे तलफ़्फ़ुज़ भी दुरुस्त फरमाते जाते हैं और साथ साथ किसी लफ्ज़ के मानी भी करते हैं। इसी दौरान एक लड़का मस्जिद के सहन में आया। पीछे मस्जिद का जो सहन था उसमें एक 13 या 14 साल का एक लड़का है, वो आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े जलाल में उठे और जाकर उस लड़के को बाजू से पकड़कर मस्जिद के दरवाज़ा पर ले जाकर उस लड़के की कमर पर अपने दाएं पैर से धक्का देकर निकाल देते हैं। मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की कि हजूर इसने क्या किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी वजह से खाने में ख़राबी हुई थी और मेहमानों को तकलीफ़ पहुँची। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप कुरान मजीद पढ़ें। दोबारा मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते मैंने
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नज़र उठाकर देखा, यानी पढ़ रहा था, मैं उधर ही देख रहा था, तो मैंने सामने देखना चाहा हज़रत वसल्लम की तरफ देखा, तो उसी जगह पर उसी लिबास में हज़रत अब्दुल गफ़ार जंबा अलैहिस्सलाम बैठे हैं। यानी वो सूरत वही कपड़े लिबास सफ़ेद है उसी लिबास में, और हज़रत अब्दुल गफ़ार जंबा अलैहिस्सलाम बैठे हैं। तो यहाँ पर मेरी आँख खुल गई, तो मेरे दिल में ये आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी लिबास में, मैंने जो मेरे दिल के अंदर आई कि उसी लिबास में, यानी नबियों के लिबास में, ये इसकी ताबीर यही बनती है। ये मैंने अपनी यानी कि ताबीर जो मेरे दिल में आई। I will explain few dreams of mine where I have given the proof also in the dreams that Zaki Ghulam is a true representative of Allah. It is the desire of every Muslim that we should be able to see Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam in the dreams. I also had such a desire for a long time, and I was never given such a blessing until recently, few years back. So in one dream, I saw Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam like an Indian person, and he was become old and lean also, and he was wearing in the Indian dress, and he was also having a topi in his head. So he was fasting in the dream, and he looked so tired. Then I took him, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, to my home, and on the way I saw Hazrat Masih Maud al-Islam also. So after seeing this dream, I was just confused. How I can see Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam like an Indian person, because he is an Arabic origin. I had to see him like an Arab. And how such a gunagar, sinful person like me bring Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam to my house? So I was so confused, and I thought maybe the dream may not be the true dream or something like that. And slowly I forgot the dream. And after I do bayat with Zaki Ghulam, after few weeks, the dream again came to my mind. And I clearly understood, actually I have seen Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam in the shape of Zaki Ghulam. Same face cut, same thin person, old person, and wearing Indian dress, Indian or Pakistani dress same, and wearing a topi on his head. So I understood that the person whom I seen as Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is the real Zaki Ghulam. I saw him in the shape of Zaki Ghulam. And when I came here, I met him personally. I understood that it is the clear person, because when you see photo, you cannot understand how much is his height or how much is his weight, etc. But when you see a person in front of you, you can understand what is his height, what is his weight, how thick he is or how thin he is. So then it clearly came to my mind, it is the same shape, same person I see in my dream. जी मोहतरम हुण तुसी अपनी ख्वाब बयान करो। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जहांगीर अहमद मलिक है, मैं नार्वे च रह रही हां जी। मेरा जमात अहमदिया दे नाल, मैं पैदाशी अहमदी सां, जमात अहमदिया दे नाल मेरा तलक है। इन्हां दी कुछ कमजोरियां मेरे सामने आईयां ते मैं बदजान हो के ते खुदा दे हुजूर जो के दुआ कीती ते खुदा ने मनो को किया कि तू फैसला कर, अगर मनो पानी ते इन्हां छड़ दे जी। मैं फिर अपने, मेरी बहुत अच्छी बीवी, मेरे बहुत अच्छे बच्चे ने, मैं सारे ने किसी चीज की परवाह नहीं की। मेरे सारे खानदान ने मेरे तक दबाव भी पाया तो वापस आ जा। मैं कहा नहीं, मैं नहीं वापस आ सकता। फिर मीर साहब ने भी आख्या बच्चे भी तेरे नाल नाराज हो गए ने ते असी एक तरीका है तू वापस जमा जा, तो क्यों निकलिया मैं।
تو واپس آ ایسی تیری بچیاں نال صلح کرا دینی ہوں. میں کہ نہیں, میری اتنے سسٹر, دو میری سسٹر نے, انہوں نے میں دعا کر کے کوشش کر کے تو انہوں نے اتنے نالوے چ بلایا سی, سیٹ کیتا ہے جی. میری ایک سسٹر ہے باجی زیدہ, اس کا نام ہے. آج تو 2 سال پہلا میں پاکستانوں جس لئے انہوں نے گھر آیا تے انہوں نے منو کیا ہے کہ بھائی جان تیرا تہاڈا تعلق مذہب دے نال ہے, روحانیت دے نال ہے, تے تسی اپنے واسطے دعا کرو جی. جس وقت میں دعا کیتی ہے تے حضرت غفار جمبا صاحب منو خواب دے وچ میں انہاں نو دیکھنا گیا کہ ایک زمین ہے بڑی چمکدی ہے زمین ہے تے او 2 بیل نے سفید بیل تے اے زمین وہاں لگے ہیں جی. اے جس لے زمین وہاں لگے نے تے پھر انہاں دے نا پسینہ آ رہا چہرے تے, میں انہاں دے سار تو جے نا پسینہ دیکھ رہا, چہرہ سارا پسینہ بھریا تے میرے کول آئے نے تے منو کہندے نے جہانگیر میری مدد کر, منو پیاس لگی ہے, پانی چاہیدا ہے جی. میں کہ دیکھنا اچانک میرے ہاتھ دے وچ ایک پیالہ آندا ہے بڑا خوبصورت, اودے وچ پانی ہوندا تے میں انہاں نو دینا جی. اے پھر پانی پیندے نے تے اس تو بعد اے پھر دوبارہ اپنے بیلاں دے نال اسی زمین چ کھیتی کرنی شروع کر دیندے, وانی شروع کر دیندے. اے میں ایک رویا دیکھی ہے, میرا دل دماغ جڑا وا او انہاں دے اوپر مطمئن ہو گیا سی. آج تو 2 سال, آج تقریباً آج بھائی جان پتہ نہیں آج تاریخ کی ہے, 4 تاریخ ہے, 4 دسمبر ہے جی جی. آج 4 دسمبر 2016 میں, آج تو 2 سال پہلا دی یہ گل ہے جی. پھر میں بڑی کوشش کرتا رہا کہ کوئی شخص منو ملے, میری مدد کرے, بھی تہاڈا نمبر مل جائے جی. لیکن کسی شخص نے, نہ احمدیہ نے نہ سنیا نے, کسی شخص میری ہیلپ نہیں کی. پھر میں اتوں پاکستان جس لے گیا تو اتھا ایک میرا دوست تھی وسیم احمد جی. اس نال جڑے میں گل کیتی ہے, تھوڑا جہا پڑھے لکھے سی, اس نے کمپیوٹر دے وچ دیکھ کے مینوں نمبر دیتا ہے. اج میرے واسطے ایک بڑی اچھی گل ہے کہ خدا تعالیٰ مینوں توفیق دے رہا, میں من چ خیانت نہیں کر رہا. مالک نے جو مینوں پیغام دکھایا میری روح نو, او میں تہاڈے تک بچا دیتا ہے. میں ہن اپنے مالک دا مجرم نہیں, لیکن میری جڑی روح جڑی کہندی ہے, میری جڑی سوچ سمجھ جڑی خدا تعالیٰ نے مینوں تیار کیتا ہے ذہنی طور تے, وہ یہی ہے کہ میں تہاڈی جماعت چ ہمیشہ واسطے آخری سانس واسطے تہاڈی جماعت چ داخل ہونا چاہنا, تو مینوں قبول کر لو. آمین. تانوں بہت بہت مبارک ہوئے, اور خدا تعالیٰ تانوں اس دنیا چ بھی کامیابی دے اور آخرت دے وچ بھی کامیابی دے. اور بندہ بڑا سچا ہوندا جڑا سچائی نو قبول کردا, اور سچائی نو قبول کرنا بہت ایک بڑا کام ہے, اور خصوصاً پھر خدا تعالیٰ دے معمور من اللہ نو قبول کر لینا یہ زمین تے سب تو وڈی ایک نعمت ہے خدا تعالیٰ دی. کسے نو زمین آسمان دے خزانے مل جان تو انہوں ہدایت نہ ملے تو انہوں زمین تو کچھ بھی نہیں ملیا, کوئی فائدہ نہیں, کچھ نہیں ملیا. میرا اسی طرح ایک بھائی جان شعر ہے, اے خدا ایسی خوشی ہرگز نہ دینا جس سے بھول جاؤں میں تجھ کو, وہ زندگی کیا زندگی جس تیرا ہم ہی نہ ہو جی. تو تانوں بہت بہت مبارک ہوئے. خدا خوش رکھے, خدا خوش رکھے. دعاواں یاد رکھو, میں دعاواں دا محتاج ہاں, دعاواں دی دولت چاہیے ہے, میری نیک بندیاں دی صحبت چاہیے, اور شکر الحمدللہ سرات جی. سب خیریت, شکر الحمدللہ. آپ سنائیں قاری صاحب, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر اللہ عز و جل کا کرم ہے, اللہ عز و جل کا فضل ہے. دوست و احباب سب خیریت سے ہیں؟ جی سب خیریت سے. میں نے نا حضور سے بات میں ابھی کر رہا تھا جب آپ کا میسج آیا نا, تو آپ کی جو بات ہوئی تھی, میں نے نا حضور سے بھی بات کی. میں نے حضور سے کہا کہ حضور دعا کی درخواست ہے کہ ہمارے ایک قاری صاحب ہیں, ان سے میری بات ہوئی تھی, اور حضور آپ کے لیے بہت دعائیں کر رہے تھے. تو سلام بھی حضور. اللہ عز و جل آپ کو خوشیاں عطا فرمائے, اور آپ کو اور حضور کو بہت سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اللہ تعالیٰ حضور کی عمر میں برکت عطا فرمائے. آمین آمین. اور میں نے اس رات کو جب آپ نے وہ میٹر مجھے بھیجا تو مجھے نیند نہیں آئی, کیونکہ یہ تو بہت چونکا دینے والی بات تھی, میں نے پہلی دفعہ اس کو سنا. جی جی. تو وہ مطلب سارا میٹر جو ہے وہ میں نے مطالعہ کیا. جی ٹھیک ہے. اور وہ سلطانی کے ساتھ آپ کی بحث جو ہے اس کو بھی میں نے سن لیا. تو اگلے دن مجھے خواب آیا. جی. خواب مجھے ایسے آیا کہ میں نے حضور کو دیکھا خواب میں
यानी हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को मैंने देखा, सुभान अल्लाह, और एक बेहतरीन किस्म का जुब्बा है आपके पास, जी हरे रंग का, वो आपने जनाब चंबा साहब को दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाँ दिया, और उसको जब पहन लिया आपने तो बिल्कुल आप जैसा कि दर्जी ने आपके मुताबिक बनाया है। सुभान अल्लाह, तो मुझे एक अरबी का शेर याद आया इस वक्त जी। तो वो शेर ऐसा है कि मुतनबी एक शायर गुजरा है, उसने लिखा है अपनी किताब में, अततहुल खिलाफत तजुर्रु इलैहि अज़यालहा वमा कानत तस्लिहु इल्ला लहु वमा कान यस्लिहु इल्ला लहा। जी जी, कि इस शेर का पूरा मिस्दाक आप उतरे, यानी बिल्कुल आपके बदन पर बराबर था, लगता ऐसा था कि ये इस्तेमाल शुदा है, यानी नया नहीं है, पुराना है जी। और मेरा दिल ये कहता था कि ये हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किया है, और लेकिन जब उसको आपने पहन लिया तो वो आपके खत के मुताबिक था। ये मैं अजीब हैरान हो गया। जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि मैंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लंबी कमीज के साथ देखा, जी तो आपने फरमाया कि हाज़ा हुवा दीन, ये दीन है। जी जी, तो इसकी ताबीर मुझे तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से मिल गई, समझ आ गई आपको? जी जी। तो ये मैं बहुत यानी उसमें था, इंतजार में था कि आप कभी ऑनलाइन हो जाए और मैं आपको बताऊं। जी, ये बहुत मुबारक ख्वाब है। मैं पहले भी वो अपने अमीर साहब को मैंने ना ये बात की थी कि हमारे एक दोस्त कारी साहब अमीर साहब मेरी बात हुई है, उनके लिए ना दुआ की दरख्वास्त है। जी। तो वो बड़े खुश हुए और कहते कि मैं इंशाल्लाह ताला दुआ करूँगा। और कुदरती बात है कि आज जैसे ही आपका मैसेज आया तो हजूर का आपके लिए दुआ सलाम का मैंने जैसे हजूर को ये बात बताई तो हजूर ने आपके लिए बहुत दुआएं की उसी वक्त ही। तो आपको सलाम भेजा है हजूर ने। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम। हुजूर के अल्लाह अज़्ज़ा व जल दर्जात और बुलंद फरमाए। आमीन आमीन। हम आपके पैरों की खाक के बराबर है और ये हमारे लिए फख्र है। बिल्कुल, हाँ जी। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल करे कि हम साथ मिलकर काम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बखिदमत अक़दस हज़रत क़मरुल अंबिया फ़ख्रुर रसूल ज़की ग़ुलाम मसीह ज़मां अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या मुर्शदी, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत व सलामती वाली लंबी फ़आल ज़िंदगी अता फ़रमाए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ेर साया जमात अहमदिया इस्लाह पसंद को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए और इस जमात के ज़रिया पूरी दुनिया को एक रूहानी आलम बू बनाए, एक नया रूहानी आसमान और एक नई रूहानी ज़मीन बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे आका, खाकसार ने 2 कशफ देखे हैं और एक ख्वाब है, वो मैं आपकी खिदमत अक़दस में पेश कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं कुरान मजीद की ये आयत पढ़ता हूँ, रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और मैं ये भी अर्ज़ करता हूँ कि खुदा की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है कि मैंने ये ख्वाब जिस तरह देखी है मैं उसको उसी तरह बयान करूँगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुदा की कसम ये ख्वाब मैंने जिस तरह देखी है मैं उसी तरह इसको बयान करूँगा और अपनी तरफ से कोई एक अदना दर्जा की भी इसमें मुदाखलत नहीं करूँगा इंशाअल्लाह ताला। पहला कशफ है कि मोरखा 29 अगस्त 2015 को रात 11 बजे मैं हज़रत इमाम महदी व मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की एक तहरीर कशफी हालत में पढ़ रहा हूँ। उसमें ये लिखा हुआ था कि
अब्दुल गफ़ार हक पर हैं और हक ताला ने उन्हें भेजा है, और मैं खुद अब्दुल गफ़ार की मदद के लिए ज़मीन पर उतरूँगा। सुबहान अल्लाह। ये हुजूर पहला जो है कश्फ, तो इसमें ये इबारत है। और मेरा अब मैं दूसरा कश्फ पढ़ता हूँ, वो ये मैंने नोट की हुई हैं अपने पास, अपनी कश्फ भी और ख्वाबें भी। तो ये दूसरा कश्फ जो है मेरा, ये मोरका 3 सितंबर 2015 को रात करीबन 12:30 बजे कश्फ में हज़रत इमाम मेहदी व मसीह मौऊद इस्लाम की एक मुबारक तहरीर पढ़ रहा हूँ कि उसमें लिखा है कि ए पाक अमर, मैं तुझे पाक करूँगा जैसे पाक करने का हक है, और अब्दुल गफ़ार हक पर हैं और हक ताला ने उन्हें खुद मबूस किया है। मैं खुद अब्दुल गफ़ार की मदद के लिए अब ज़मीन पर उतरूँगा। सुभान अल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। तो हुजूर ये मेरे 2 कश्फ हैं। अब मैं अपनी ख्वाब बयान करता हूँ। प्यारे आका खाकसार ने चंद दिन कबल ये ख्वाब रोज़ बुध मोरखा 16 सितंबर 2015 रात को देखा है कि जो कुछ इस तरह से है कि मैं ख्वाब में अपने आप को एक बहुत बड़ी मस्जिद में देखता हूँ। लोग नमाज जुमा के लिए मस्जिद के अंदर ही वज़ू करने की जगह वज़ू कर रहे हैं। मैं भी वज़ू करके मस्जिद में तीसरी सफ़ पर बैठने का इरादा कर ही रहा हूँ कि मुझे मालूम हुआ कि यहाँ तमाम अहमदी हैं और ये मुझे पहचान लेंगे और गुस्सा में आकर हो सकता है कि मुझे मस्जिद से ही बाहर निकाल देंगे और कहेंगे कि आप जमात अहमदिया इस्लाह पसंद से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं अपने सर पर जना कैप को नीचे दबा कर रखता हूँ कि मैं पहचाना ना जाऊँ, और पहली साफ में बैठने का इरादा करता हूँ इसलिए कि लोग मेरे चेहरा को देख नहीं सकेंगे। मैं पहली साफ में जाकर बैठा ही था कि मिर्ज़ा मसूद अहमद साहब सरबराह जमात अहमदिया कादियान के बॉडीगार्ड सामने आकर महराब के दाएं और बाएं ड्यूटी के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं सोच ही रहा था कि ये मुझे पहचान लेंगे। मैं खड़े होकर दाएं तरफ देखता हूँ तो छोटी छोटी चाइना मुल्क की बच्चियाँ नगमात गा रही हैं। एक लंबी कतार है बच्चियों की, और दूर से मिर्ज़ा मसूद अहमद साहब भी मुझे आते दिखाई देते हैं। जब थोड़े करीब आए तो मिर्ज़ा मसूद अहमद साहब के सामने आप हजूर अलैहिस्सलाम यानी हज़रत अब्दुल गफ़ार जंबा अलैहिस्सलाम नज़र आते हैं, और मिर्ज़ा मसूद अहमद साहब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देकर खुदाम को इशारा से हज़रत अब्दुल गफ़ार जंबा अलैहिस्सलाम की ड्यूटी के लिए खड़े कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि आज से हज़रत अब्दुल गफ़ार जंबा अलैहिस्सलाम ही इमाम हैं और वो खुतबा जुमा और नमाज जुमा पढ़ाएंगे। मैं ये सब देखकर बहुत हैरान हूँ कि ये अचानक तब्दीली कैसे हो गई। फिर आप हजूर अलैहिस्सलाम यानी हज़रत अब्दुल गफ़ार जंबा अलैहिस्सलाम महराब में नमाज जुमा पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं इमाम की जगह पर, और मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब पीछे मेरे साथ सफ में खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर मेरी आँख खुल जाती है। आखिर में प्यारे हजूर इस आजिज़ के लिए दुआ की दरख्वास्त है, अल्लाह करे कि ये जिस तरह खाकसार ने ख्वाबें देखी हैं और कश्फ देखे हैं, इसी तरह अल्लाह ताला अपने फजल करम से जल्द पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे हजूर खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।